بہت خوشی ہو رہی تم سے. کتنا عرصہ ہو گیا, بہت عرصے کے بعد. بہت ٹھیک, تم سناؤ بچے اچھے ٹھیک ہے سر؟ ارے بھابھی السلام علیکم بھائی, کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ ساجدہ کیسی ہے؟ ساجدہ ٹھیک ہے. بہت عرصے بعد آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں. بھابھی بہت عرصے کے بعد. بس ہم دونوں کا پروگرام تھا کہ اکٹھے آئیں گے, مگر میں اسکول سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اکیلے ہی ملتا چلوں نادم. ویسے اب تو یہ لندن کے پرانے لوگوں میں ہے. کب سے یار؟ اب تو یار پورے 5 سال ہونے والے. ساجدہ کو تو یہاں کی ساری مارکیٹس کا پتہ ہوگا. بس میں تو ساجدہ کے ساتھ شاپنگ کا پروگرام بناؤں گی. بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمیں 2 ہفتے ہوئے یہاں آئے ہوئے, اس فلیٹ میں پناہ لیے, اب کچھ عرصے بعد ہی مکان خریدیں گے. بھابھی آپ لوگ تو اکثر لندن آتے جاتے رہتے ہیں, آپ نے تو یہ شہر اچھی طرح دیکھا ہوگا. اس بار بہت عرصے بعد آئے ہیں. تم یہاں کیوں آ گئے؟ وہیں کسی وزیر وغیرہ کو پکڑ لیتے, تمہاری انکوائری ٹھیک ہو جاتی. نہیں یار, مجھ میں مزید لڑائی کی ہمت نہیں دی. انکوائری سے پتا چل رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے لٹکانا چاہتے ہیں. اگر مجھے جیل ہو جاتی تو میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا, میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ تو دربدر ہو جاتا. پھر یار میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا, کوئی قصور نہیں تھا میرا, یا شاید یہ قصور تھا میرا کہ میں اس سسٹم میں فٹ نہیں تھا. اس زمانے میں سب سے بڑا قصور تو یہی ہے. میں تمہیں ہمیشہ سمجھایا کرتا تھا کہ یار زمانے کے ساتھ چلو, لیکن اکیڈمی کے زمانے سے لوگ کہا کرتے تھے کہ تم بیسٹا بنو, تم میں چینج نہیں ہو. اس لیے تو میں نے ملک چھوڑ دیا. جو گرد میرے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ مجھ پر حملہ کر دیتے اور مجھے نوچ ڈالتے. جو انگلیاں مجھ پر اٹھتی ہیں وہ میرے بچوں کے لیے زہر ثابت ہوتی. میں یار اپنے بچوں کو کیسے سمجھاتا کہ بیٹا تمہارا باپ بے قصور ہے, اس نے کوئی قصور نہیں کیا. تو یہاں تمہاری نوکری کیسے چل رہی؟ ہاں بس ٹھیک ہے. اسکول کالج میں لیکچرشپ مل جاتی ہے کانٹیکٹ بیسس. وہ میں نے تمہاری انکوائری کے بارے میں پڑھا تھا, بہت افسوس ہوا مجھے. یہاں اخبارات آتے رہتے ہیں, اردو اخبار میں ساری خبر چھپی تھی ڈیٹیل کے ساتھ. وہی اخبار والے ویسے ہی پیچھے پڑ گئے تھے, اسکینڈل چھاپتے رہتے تھے. پھر وہ انکوائری شروع ہو گئی, اینٹی کرپشن والے پیچھے پڑ گئے. گورنمنٹ کو دیکھو ہمارے پیچھے ہی پڑ گئی. کون ہے جو نہیں کھا رہا؟ اس ہما میں تو سارے وزیر سے ہماری دشمنی ہو گئی. یار وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا, کیوں پریشان ہوتی؟ کبھی ہمارا وقت بھی آئے گا. اچھا بھائی, میں آپ لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں. یہاں تو یہی مصیبت ہے, سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. یہ تو ہے. اور سناؤ, تمہارا کیا پروگرام کیا ہے؟ ابھی تو آرام کروں گا, بہت تھک گیا ہوں. وہاں سروائیول کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے. یہاں کچھ اپوزیشن کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, ان سے رابطہ رہتا ہے. انہوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ گورنمنٹ بدل گئی تو کوئی اچھا عہدہ دے دیں گے. بس ابھی تو گورنمنٹ کے بدلنے کا انتظار کرو. تم بتاؤ, کسی سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ نہیں, کسی سے نہیں. 5 سال تمہیں یہاں ہو گئے, ابھی تک کسی سے نہیں ملا. کیسے آدمی ہو یار؟ بس ایسا ہی ہے یار, میں اور تم ایک نہیں ہو سکتے. ابھی تک تو ایک ہی کشتی میں سوار ہے, تم بھی ملک سے بھاگے ہو, میں بھی. تم مجھے اپنے ساتھ بریکٹ مت کرو. کیسے بریکٹ نہ کرو؟ لوگوں کی نظروں میں مجھے تم بھی ہو, مجھے میں نے کوئی جرم نہیں کیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ میں بے قصور ہوں. میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. میں ساری دنیا, تمہاری ساری دنیا میں صرف تمہارا کمشنر اور تمہارا پرانا چیف سیکرٹری ہی ہے. یقین نہیں آتا تو جا کے پوچھو ضلع کے لوگوں سے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تم نے جو تم پر کیس بنا. کیا فضول بات کر رہے ہو تم یار؟ تم اندھیرے میں ٹانپ ٹوئیاں مارنے والے, اندھیرے میں ٹھوکریں کھانے والے آدمی. میں ہمیشہ تمہیں سمجھاتا رہا ہوں کہ زندگی کی حقیقتیں کتابوں سے بہت مختلف ہوتی. اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو, لیکن تم شرابوں کے پیچھے بھاگتے. ڈے ڈریمنگ تمہاری ہابی. پھر دیکھو, اگر اپنی ناکامیوں کا بدلہ تم مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ کیوں مجھ پہ غصہ اتار رہے؟ میری زندگی میری ہے, تمہاری تمہاری.
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसका खत है? हर मजिस्ट्री की हुकूमत की जानिब से मैं नाज़िर करते हुए ये इतला करने पर मामूर हुआ हूँ कि हुकूमत ने इस मुल्क में मजीद क़याम के लिए आपकी दरख्वास्त मंजूर नहीं की। ताहम आपके मखसूस हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको चंद रोज सफर की तैयारी के लिए दिए जाते हैं। इस नोटिस की वसूली के 7 रोज बाद आपको इस मुल्क को छोड़ देना होगा। थैंक यू सर। वेलकम सर, जैसे ही आपके आने की इत्तला मिली तो हम आपसे मिलने रेस्ट हाउस पहुंच गए। तो वहां मालूम है सर कि आपकी फैमिली आपके साथ आई है, तो हमने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आपके जिले में आने की हमें बेहद खुशी हुई। सर, आपकी ईमानदारी और शराफत का बहुत जिक्र सुन रखा है। जी जनाब, बेशक पूरा जिला आपके आने से खुश है जनाब। और हुजूर का नाम नामी तो जनाब इस जिले में पहले से ही पहुंच चुका है। हुजूर रात मैं भी एडीसीजी साहब के साथ दरदौलत हाजिर हुआ था जी सलाम करने के लिए। मैंने एडीसीजी साहब को बताया भी था कि जनाब हुजूर रात को किसी के साथ मिलते नहीं है नहीं घर पे, लेकिन सलाम करने तो हाजिर होना पड़ता है ना जी। वैसे कोशिश करेंगे जो भी मसाइल हो वो दफ्तर में ही हल किया जाए। जी, लोगों से मिलने के लिए भी कोई रुकावट नहीं है। आम आदमी भी जो चाहे चिट भेज कर मिल सकता है। हाजी साहब, आप पीएन से कह रहे हैं? हाँ जी सर, जी सर, हुक्म की तामील होगी सर। एडीसी साहब, मैं चाहता हूँ काम शुरू करने से पहले अमले से मिल लिया जाए जी, ताकि मुझे पता चले कि कौन शख्स क्या काम कर रहा है। आप जरा अमले को इत्तला करवा दें। जी बेहतर सर। जी सर। राम सर। चलो, हाँ भेजो, फौरन भेजो। आइए आइए सरदार साहब, तशरीफ लाइए। बड़ी खुशी हुई आज। तशरीफ कैसे आप? बस सही, अल्लाह का करम है। बड़ी तारीफ सुनी आपकी सरदार साहब। सही बात है, आपके आने की हमें बड़ी खुशी हुई है। शुक्रिया। मैं 1 हफ्ते के लिए तो बाहर गया हुआ था, जरा वापस आया। मैंने पूछा भाई नए साहब आए हैं, कोई हमारे बारे में उन्होंने पूछा। कल मैं आपकी कोठी पर भी गया था, लेकिन नौकर ने बताया कि जी साहब घर पर नहीं है। मैंने सोचा भाई ठीक है, साहब घर पे शायद किसी को मिलना नहीं चाहता। नहीं सरदार साहब, ये बात नहीं है। हम तो हुकूमत के मुलाजिम हैं, लोगों से मिलना ही हमारा काम है। दरअसल सरदार साहब, घर पे मिलने से कुछ लोग बातें करने लगते हैं। देखिए, कल को आपके मुखालिफी शोर करेंगे कि दोनों मिलकर पता नहीं क्या साजिश कर। छोड़े हमसे, फिर नया नया आया हो ना, तो अभी जरा वाकफियत वगैरह। हाँ वाकफियत सही, आपका अपना इलाका है। आप कभी हमारे डेरे पर तशरीफ लाए, कोई खाना छाना, कोई खिदमत का मौका दें। और मैंने तो सुना है कि आपको शिकार का शौक भी है। और सही मेरी तो अपनी शिकारगाह बनाई हुई है मैंने। ये पिछले दिनों आए थे, अपना 2 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, बड़े खुश होके गए, बड़ा आला शिकार हुआ है। और अभी पिछले हफ्ते ये
اپنا گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے آنا تھا, پتہ نہیں پروگرام پوسٹ پون کر دیا یہ کیا کر دیا ہے. آؤں گا انشاءاللہ. شکار کا ابھی تک ہمیں بھی بہت شوق ہے سردار صاحب, مگر میں نے عرض کیا نا کہ ابھی نئی پوسٹنگ ہے, تو اس لیے آہستہ آہستہ وقت ملے گا تو ضرور آؤں گا انشاءاللہ. آپ کو میں مطلع کر دوں گا. لیکن خالد صاحب یہ وعدہ جو ہے یاروں والا ہونا چاہیے, یہ افسروں والا وعدہ نہیں چاہیے مجھے. انشاءاللہ. یہ ایک بات کرنی تھی آپ سے. اچھا تو نہیں لگتا کہ پہلی ملاقات میں ہی آپ سے بات کرنا, لیکن معاملہ ذرا وہ ٹائم لیمٹ کا ہے, تو میں نے سوچا کہ کوئی حرج نہیں ہے بات کرنے. فرمائیے. وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے کچھ پروگرام بنایا ہے, 500 ٹریکٹرز خریدنے کی سکیم بنائی ہے کوئی, تو میں اصل میں اس پرچیز کمیٹی کا ممبر ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ وہ پروگرام بنائیں تو مجھے ضرور بلوا لیں. جی کیوں نہیں سردار صاحب, یہ تو بڑا اچھا کیا آپ نے بتایا, آپ کمیٹی کے ممبر ہیں. ویسے میرا صرف خیال ہے ابھی یہ کہ اگر کیوں نہ ہم ٹریکٹر سائز کمپنی سے ڈائریکٹ بات کر لیں. آپ سے بس مشورہ چاہتا ہوں میں, تو اس طرح یہ ہوگا کہ وہ درمیان میں سے جو ایجنٹ ہے وہ نکل جائے گا, اور پھر اشتہار کے ذریعے کمپنیوں سے ہم ریٹ بھی لے لیں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ ہاں خیر ٹھیک ہے, جیسا بھی آپ مناسب سمجھیں. اسے فائلوں کے پیٹ تو آپ نے بھرنے ہیں نا, اپنا بھی خیال رکھیں, ہمارا بھی خیال رکھیں, لیکن شکار کا پروگرام ضرور بننا چاہیے. شکار کا آپ کا جب بھی پروگرام ہو, یہ آپ کا سپرنٹینڈنٹ ہے کیا نام ہے, حاجی صاحب کو آپ نے اطلاع کر دینی ہے, سارا انتظام ہو جائے گا. یہ حاجی صاحب کا آپ نے ذرا خیال بھی رکھنا ہے, بڑا قابل اعتبار آدمی ہے, رازداری کو رازداری رکھتا ہے. اچھا میں چلتا ہوں, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. آپ ٹیلی فون پر حکم کر دیا کریں ملک صاحب, اتنے چھوٹے سے کام کے لیے آپ کو خود آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تک کوئی آدمی آ جاتا تو بھی کافی تھا. یہ تو بہت معمولی سا کام تھا, کوئی بڑا کام ہو تو بتائیں, ہم تو آپ کے خادم. کئی دن ہو گئے تھے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, سوچو چلو ملاقات کرتے ہیں. تحصیلدار طارق بہت تنگ کر رہا تھا, تو خیر اچھا ہوا تم نے اس کو ٹرانسفر کر دی, لیکن اس کو ابھی کہیں لگانا نہیں ہے جب تک تمہیں نہ کہوں. میں کمشنر سے بات کر لوں گا. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, بس آپ کا حکم چاہیے. اس وجہ وہ آپ نے کچھ ٹریکٹروں کی اسکیم کے بارے میں سوچا؟ گاڑی میں کچھ مہمان بیٹھے تھے, ان کو بٹھا دیا؟ جی سر, میں نے ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا جی. ٹھیک ہے. دیکھو اس اسکیم کے لیے جو کمیٹی بنے گی وہ تمہاری سربراہی میں بنے گی. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کچھ رکاوٹ کر رہا ہے. سیکٹری کہتا ہے کہ ہمارے ضلع میں دیہی علاقہ بہت کم ہے, اس لیے 100 ٹریکٹر بہت زیادہ ہے. میں وزیر اعلیٰ سے بات کر رہا ہوں کہ جناب ہمارے ضلع میں تو 500 ٹریکٹر بھی بہت کم ہے. میری کوشش جاری ہے, انشاءاللہ کام ہو جائے گا, ہمیں کوٹے سے زیادہ ہی ملیں گے. میرا ارادہ تھا کہ 3-4 ٹریکٹر ڈی سی ہاؤس کے لیے بھی رکھ لیں, وہ گھر کے ساتھ والا کھیت خراب ہو رہا ہے, وہ ٹریکٹر وہاں استعمال کر لیں گے. آخر یہ بھی تو سرکاری زمین ہے. صحیح, آپ صاحب اختیار ہیں, جو آپ کی مرضی. وہ کیا کہتی ہیں, وہ شاعری میں ہمیں تو آتی نہیں ہے, وہ کیا ہے کہ جو کرے ہیں بس آپ کرے ہیں, اور ہمیں تو بس بدنام کیا ہے. آپ نے بس کو بس سے بڑا اچھا سبسٹیٹیوٹ کیا. جی صاحب, آپ نے لوگوں کو بتا دیا ہوگا کہ یہ میٹنگ کے سلسلے میں بلائی گئی ہے. جی سر. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں, یہ میٹنگ دریائے ریک پر پل بنانے کے سلسلے میں بلائی گئی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو علم ہے کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ متعلقہ محکمے کو فنڈز مہیا کیے گئے, مگر پل پھر بھی نہیں بن سکا. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام اب ڈی سی کے ذمہ سونپ دیا جائے. اگرچہ یہ میرا کام نہیں ہے, میں نے اس سلسلے میں سی ایس صاحب سے بات بھی کی تھی, مگر
ये उनका हुक्म है कि ये काम मेरा दफ्तर ही करेगा, मगर मैं जानता हूं कि आप लोगों की टेक्निकल ओपिनियंस के बगैर ये काम नामुकम्मल होगा। सर जरूर काम तो ये हमारा ही है। आई एग्री विद यू, बट इट इज गवर्नमेंट्स डिसीजन एंड आई एम बाउंड टू इम्प्लीमेंट इट। अब जानते हैं एक्शन साहब की उससे पहले 2 मरतबा फंड्स मुहैया किए गए मगर पुल ठहर नहीं सका। हाँ सर, वो असल बात यह है कि रकम भी मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से और फिर उससे मटेरियल भी खरीदा गया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने जो है वो किस्तें देना बंद कर दी। इधर गवर्नमेंट ने किस्तें बंद की, उधर ठेकेदार ने काम रोक दिया, इधर ठेकेदार ने काम रोका तो लोग ये जब पुरानी बातें इनको दोहराने का कोई फायदा नहीं। हाजी साहब, आप इस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे, आपका काम है कि पूरा ख्याल रखें और तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करें आप। जी सर। जो भी बिड्स आएंगी उनमें लोएस्ट बिड जो होगी उस पर हम निगोशिएट करेंगे, और जब हमने वो क्या कमीशन नहीं लेना है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर से ऐसी बात की जाए कि कम से कम हम पैसा खर्च कर सकते। सर आपने बिल्कुल सही फरमाया है, लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे मंसूबों की आधी रकम तो कमीशनों में चली जाती है जनाब। सर, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो आधे पैसों में काम हो सकता है सर। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ तो महकमों का ये आलम है। आप देखें ना कि अपने महकमे की बात नहीं करता हूँ, मैं दूसरे महकमे की भी बात करता हूँ। किसी महकमे से भी एक फाइल निकलवानी हो तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। यहाँ तो सारे महकमे ऐसे हैं सर, पूरा आवे का हवा ही खराब हुआ है सर। आवे का हवा खराब नहीं हुआ है, दरअसल इस निजाम के पैरेलल एक निजाम चल रहा है जो इंतहाई मुकम्मल और एफिशिएंट है। साहब, जी सर। इसके अलावा जो आइटम्स है जो हमने डिस्कस करने थे इस मीटिंग में, जी दिखाइए। किसकी बनी है आल में न पाए दाल में। मैं तुझे सारी ही चाहती इतने अच्छे दिन काटे हैं। अब अगर तुझे 4 दिन कोई मुश्किल काटना पड़ गए हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं हर वक्त गमगीन गाने गाता रहे। गमगीन गाने परसों मैं जब गा रहा था, चोरी चोरी तेरे नाल लग गई आंखों में, तो जूता लेके मेरे पीछे पड़ गई थी। ये दिन तो बहुत ही बुरे आए हैं। मुझे लगता है ये दिन कहीं महीनों में न चले जाएं और हो सकता है साल ही ना गुजर जाए। मैं बाजार गया ना तो सब लोग साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, कि बड़ा ईमानदार आदमी, इसकी जहां भी पोस्टिंग होती है वहां से निकलता ही नहीं, और ऊपर वाले भी इसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों पसंद करते हैं। अगर इतना ही पसंद करते हैं तो इसको ऊपर क्यों नहीं बुला लेते, हम भी किसी अच्छी जगह की सैर कर ले। ना तो साहब अच्छा बंदा है तो लोग उसको पसंद करते हैं ना। तेरे जैसे नशुक्रे नहीं है लोग। अच्छा, खुदा का खौफ किया कर, खुदा का खौफ। खुदा का खौफ तो गरीबों के लिए रह गया ना। अल्लाह ने गरीबों को पेट लगा दिया और अमीरों को जेबें लगा दिया। एक दिन में लाखों रुपया जेबों में डाल लेते हैं। हमने 100 दिन में से 5 या 10 रुपए कमाने होते हैं और हमारी शामत आ जाती है। पहले कोई साहिल आ जाता था ना घर पे तो मैं हिसाब किताब से उसको दस्तखत करवा देता था साहब से। अब साहब किसी आदमी को मिलता नहीं है, साहिल कोई आता नहीं। पहले कोई साहिल 100-200 रुपए इनाम दे देता था। ऊपर से बेगम साहबा ने बहुत सख्ती कर दी है। अच्छा, वो फ्रूट मंगवाती है ऐसे जैसे कोई दवाई मंगवा रही है ना मगी कि 3 किलो ले आना, 3 अमरूद ले आना। 1 किलो 1 अमरूद सुबह, 1 किलो 1 अमरूद दोपहर, 1 किलो 1 अमरूद शाम को। ऊपर से कहती हैं कि रेट लिस्ट साथ लेकर आओ। तुझी से कहती हूँ कि रेट लिस्ट साथ लेके आओ, मुझे तो नहीं कहती। मुझे तो वो देखना इतने अच्छे अच्छे प्रांदे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, इतने अच्छे अच्छे जूते, मुझे तो इतना कुछ लेके देती है बेगम साहब। आपसे बहुत बहुत माजरत, आपको बहुत इंतजार करवाया। तशरीफ वो दरअसल यार मैं जरा रस्ते में रुक गया था, वो सरदार रशीद से मिलने। इस सरदार रशीद से तुम्हारी कैसे बात की? वो तो मेरे इलाके का मेंबर। मेरा पुराना वाकिफ है, तुम लोगों से ताल्लुकात रखो तब है ना। नहीं ऐसी कोई बात मैं इसे बता रहा था कि खालिद हमें लिफ्ट नहीं कर रहा था, उससे ताल्लुकात रखने चाहिए था। खुद मिलता बहुत कम है। उसका काम तुम कर दिया करो। ऐसे लोगों से ताल्लुकात बना के रखना बहुत अच्छा होता। यकीन करो तुम कानून के मुताबिक जो काम होता है मैं तो कर देता हूँ। यार दोस्तों के लिए कोई कानून वगैरह नहीं होता, काम निकाला। इस सफर ने तो भटका दिया है। भाभी,
वैसे आप लोगों की पोस्टिंग पूरी दूर हुई है। पता नहीं लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ हैं, न दरख्त है, न घास है, नीला मैदान ही मैदान है। 100 मील गाड़ी दौड़ती है तो फिर कहीं जाकर आबादी आती है। वैसे आपकी बड़ी हिम्मत है जो आप यहाँ रह रही हैं। क्या करूं भाभी, अब जहाँ खालिद होंगे वहीं रहना पड़ेगा। आपकी एनजीओ कैसी चल रही है? बड़ी जबरदस्त। पिछले दिनों टीवी वाले आए हुए थे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। वो नए स्कूल खोले हैं ना और सोशल वेलफेयर का काम किया है, उस पर बनाई है उन्होंने। जी मुझे बताया था खालिद, बल्कि इन्होंने तो मुझे शेड्यूल टाइम भी बता दिया था। और ये भी कह रहे थे कि प्रोड्यूसर हमारे कॉमन फ्रेंड है। अभी अब 3-4 दिन तो आप लोग यहाँ रहेंगे तो प्रोग्राम ये बनाते हैं कि रात को चलते हैं वहाँ, वो आपका साहिल वाला वो रेस्ट हाउस बहुत मशहूर है। मैंने से बड़ा तंग किया हुआ था कि किंगली रेस्ट हाउस जरूर देखना, हालांकि मैंने इसे बताया भी था कि 7-8 घंटे का सफर सिर्फ कच्चा रास्ता, लेकिन इसमें बड़ा पक्का इरादा पाया। ये प्रोग्राम भी बहुत देर से बना रहे हैं, अब आना हुआ है। इन्हें तो टाइम ही नहीं होता। कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी, कभी लाहौर, कभी कराची। भाई तुम अपने जिले में कब होते? यार जिला चलता रहता है, अपने मोमेंटम पे चलता रहता है। अभी तो घूमने फिरने का वक्त है, जब जोर जवाब देगा फिर कहाँ घूमना फिरना। तुम भी निकला करो ना यार अपने इलाके से। हम कैसे निकले, हमारा कमिश्नर को छुट्टी नहीं देता, महीनों गुजर जाते हैं। एक तो तुम इंडिस्पेंसिबल बन जाते हो, या कम से कम अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझ लेते। निकलना चाहिए, निकलो इस इलाके से, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आओ। खालिद, आपने उनकी शान और शौकत देखी थी? कम से कम 20 आदमी तो जरूर होंगे, और एक आप है 3 आदमियों के साथ दौरे पे निकल जाते हैं। मिसेस नाज़िम का जेवर देखा था आपने? हाँ देखा था, मगर क्या करें, मुझसे वो नहीं हो सकता जो ये लोग करते। क्यों नहीं हो सकता? सारी दुनिया यही करती है। अरे नहीं, सब एक से नहीं होते। अब वो साजिद साहब हैं, शाहिद हैं, उमर हैं, उनके हालात हमारे जैसे। अगर 2-4 आदमी आपकी तरह मिल भी जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कौम का दर्द रखने वाले। बाकी तो सब मिलने वाले हमारे नाज़िम की तरह है ना, मजे करते हैं, सैर सपाटे करते हैं, काम कोई और करता है, कार्रवाई डालकर अपना नाम लिख लेते हैं। आप उन लोगों की मिसाल क्यों देते हैं जो आटे में नमक के बराबर है? खालिद, इनमें से अगर आपकी जगह मैं होती ना तो ब्लू एरिया में 6 प्लाजे खड़े कर देती। इसीलिए खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। मगर तुम इन्हीं हालात में गुजारा कर रही हो। सिर्फ तुम हो, तुम जो इस खुश असलूबी से इस घर को चला रही हो। ग्रेट ग्रेट वाइफ। क्या करें जनाब, आपके साथ जिंदगी जो बसर करनी है। सलाम सरदार साहब। बैठो बैठो बैठो। हाँ भाई, क्या हाल है? बुरे हाल है सरदार साहब, मेरा कर्जे वाला मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। डीसी के पास गया था मैं, आपका रुका दिया उसे, उसने पढ़ा और कहने लगा जी कि फाइल देखकर फैसला करूंगा। 2 महीने हो गए सरदार साहब, हाजी साहब ने भी बड़ी कोशिश की है लेकिन नतीजा। कोशिश क्या मलिक साहब, मैंने बाकायदा खुद बात की है डीसी साहब से। सरदार से ही मैंने उसको बताया है कि जनाब ये सरदार साहब का अपना आदमी है, खास वो खास। फाइल भी उसको पहुंचा दी थी, पढ़ के वापस दे दी। मर्जी का मालिक है ना जनाब डीसी साहब। सरदार साहब कुछ करे, नक्शा मंजूर नहीं हुआ, मेरा सारा काम रुका पड़ा। हाँ बाबा, करते हैं कुछ तुम्हारा, करते हैं।
चल घबरा। सरदार साहब, आपने मेरे बेटे का तबादला भी कराना था जी। डीसी से अभी तक तहसील से जिले में लेकर नहीं आया जी। मैं जरा असेंबली के इजलास से फारिग होके आता हूँ तो तुम सबके काम करता हूँ। घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, इंशाल्लाह सबके काम हो जाएंगे। अपना हाजी साहब, ये पुल का काम कैसा चल रहा है? तो तुम तो सारे फंड के इंचार्ज हो। सरदार साहब खाक इंचार्ज है, सारे काम तो डीसी खुद देखता है। फाइल का एक एक कागज पड़ता है, अकाउंट बुक तक को तो आप चेक करता है, हर बिल का हर आइटम देखता है। हम तो सही बस कलर की करते हैं। सरदार साहब, आप इस डीसी का तबादला क्यों करवा देते? ये आपका इलाका है, यहाँ पर आका हुक्म चलना चाहिए। बिल्कुल सरकार, ऐसा ही होना चाहिए। बात ये है कि हमारा डीसी पकड़वा ही नहीं देता है। अगर कोई खाने पीने वाला बंदा होता तो अब तक कब का मैं फारिग करा चुका हूं, लेकिन ये तो ऐसा बंदा है, न खुद खाता है न किसी को खाने देता है। वैसे डीसी साहब तुम्हारा अच्छा आदमी है भाई, वो कभी कभी ऐसे आदमी के साथ भी गुजारा करना पड़ जाता है। हाँ, और फिर सच्ची बात ये है कि सरकारी आदमी के साथ खुल्लम खुल्ला जंग नहीं लड़ी जा सकती। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आइए बाबू जी, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको खुश रखे। वो आपकी विरासत का इंतकाल हो गया? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको हयाती दे। बड़ी मेहरबानी जनाब की। मैं ऐसे बस सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ था। वैसे सरकार, आपने बड़े खून होने से बचा लिए हैं। हे अल्लाह की होश पटवारी पर जिसने मेरे बाप की जमीनों को मेरे ही चचाजादों के नाम हिब्बा कर दिया। सरकार बाबा जी, मैंने तो आपसे कहा था कि जिस किसी ने आपसे पैसे लिए हैं या आपसे फ्रॉड किया है उसके खिलाफ आप एक दरखास्त दें, मैं एक्शन लूंगा। साहब निशानदेही करते, मगर क्या किया जाएगा? आप लोग तो निशानदेही भी नहीं करते। किसको पकड़े हो? सरकार, कौन पकड़ा गया है इस मुल्क में? और फिर हम लोग बाद में हम यहीं रहते हैं, इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं। सरकार, आप तो चले जाते हैं जी। अब वो अपना, वैसे सरकार बड़ा नाम है जिले में आपका, आपकी शराफत और नेकी बड़ी मशहूर है। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआएं दिया करे। कोई और काम? वो सरकार एक ऐसे करेंगे, ये जो हाजी साहब है ना, हाजी साहब सरकार, इससे जरा बच के रहिएगा। बड़ा जहरीला आदमी है ये। सामने चलो बाबा, निकलो जल्दी, निकलो। साहब पतंग न किया करो। सलाम साहब, जनाब आपसे वो कॉन्ट्रैक्टर की बात करनी थी। वो देरी भी कर रहा है काम में और ऊपर से मटेरियल के कीमतें भी ज्यादा चार्ज कर रहा है। उसकी फाइल दिखाओ। ये जनाब, बैठो। एडीसी साहब को भेजिए। जी सर, आइए। थैंक यू सर। हाजी साहब, ये कैश बुक और वोचर्स में डिफरेंस है? वो तो नहीं सकता सर, फर्क है सर, मैं देख सकता हूँ जरा। जनाब ये सारा किया जनाब उसी ठेकेदार का है। मैंने तो अपने कैशे से कह दिया था कि भाई साहब हर वाउचर और हर चेक जो अच्छी तरह चेक करना है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी यही कुछ करते हैं।
हाजी साहब, इस कैश बुक पर आपने खुद इनिशियल किए हैं, वोचर्स को आपने वेरीफाई किया है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये पुल बनाने का प्रोजेक्ट कितना अहम है। अगर हम इस पर काम ना कर सके तो जरूरत क्या है हमारी? अगर जर्रा जर्रा बराबर की हेरा फेरी हुई तो मैं आपको मुलजिम समझूंगा, समझा? जी जनाब, जनाब हाथ बजाने में जनाब, ये समझने में, क्योंकि आप तो खुद ठेकेदार से लड़ते रहते हैं, इंजीनियर साहब को भी डांटते रहते हैं कि भाई खर्चा कम से कम करो। आप 3 लाख का बिल गलत पास करवा लिया, वो आइटम एस्टिमेट में शामिल ही नहीं। मैं आप लोगों पर एतमाद करता हूं, मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि आप अकाउंट्स पर नजर रखें। मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है। सर, ये बात तो आपके इल्म में है कि जब ये बिल पास हुआ है मैं छुट्टियों पे था सर। अल्लाह सच्चा जानता है किसी साहब, मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, मुझ पर खुदा की मार में ईमान से। ठीक है, ठीक है। जी साहब। जी सर। आप इंक्वायरी करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। फिलहाल कोशिश कीजिए कि वो ठेकेदार से रिकवरी हो जाए। ठीक है, आप जाइए, चलें। अच्छा, इसे रहने दीजिए यहाँ। चलिए साहब। जी सर। आप ये हाजी साहब जो है, इनको किसी और जगह पोस्ट करें। आप इनका काम वो क्या नाम है उसका, रमजान साहब, रमजान, उसको दे दें अभी ऑर्डर इसी वक्त। जी बिल्कुल जी, मुझे थैंक यू। मुझे आज यहां आकर बेहद मुसर्रत हुई। इस खुशी का इजहार अल्फाज में मुमकिन नहीं। आज इस इलाके का एक दरीना मसला हल हो गया है। आप सब लोगों को मालूम है कि दरियाए रेग की वजह से आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इससे कबल भी दरिया पर पुल बनाने के मंसूबे बनाए गए, बहुत सी कोशिशें हुई, हुकूमत ने फंड्स भी मुहैया किए, लेकिन यह मंसूबा किसी न किसी वजह से पाए तकमील को ना पहुंच सका। चूंकि मुतल्लिका महकमा इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में नाकाम रहा, इसलिए मैंने एक नया तरीका इख्तियार किया और पुल तामीर करने के लिए ज़िलाई इंतजामिया को फंड्स मुहैया करने का फैसला किया। मेरे इस फैसले पर बड़ी मुखालफत हुई, कई फनी एतराजात उठाए गए, मगर हमारे मोहतरम वजीर आला साहब जो इस इलाके में खासी दिलचस्पी रखते हैं, उनकी सपोर्ट और मदद की वजह से हमने सारे मसाइल पर काबू पा लिया। आज मैं अपने आप को सुरखरू समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह यह मंसूबा कामयाब हो गया है। मैं इस सिलसिले में ज़िलाई इंतजामिया को भी मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इस पुल की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आ गया। हाँ, गया मैं। कैसा रहा फंक्शन? थके हुए लग रहे? ऐसे फंक्शन में आदमी थक तो जाता ही है। तो फंक्शन ठीक रहा? हाँ, अच्छा रहा। कोई वाह वाह हुई आपकी?
चीफ सेक्रेटरी साहब ने तस्करा तो किया कि भाई जिला इंतजामिया ने बड़ा काम किया। कमाल है, भाग भाग के आप काम करते रहे, थका दिया अपने आप को। चीफ सेक्रेटरी से इतना नहीं हुआ कि आपकी तारीफ में 2 लफ्ज ही बोल देता? अरे सीए साहब को सब पता होता है। देखो पुल तामीर हो गया साहिदा, बड़ा अच्छा हुआ और कम लागत में तामीर हो गया, मुझे यही चाहिए था बस। खालिद, आपको तो और कुछ नहीं चाहिए होगा, मगर मुझे और बच्चों को तो चाहिए ना। करोड़ों रुपया था आपके पास, लेकिन आपने उसमें से 1 पैसा भी नहीं इस्तेमाल किया। ऐसे मैं कर नहीं सकता, कुछ तो हो ही नहीं सकता। यूं समझ लोगे ये मेरी नसीब में ही थी। अच्छा किया तुम आ गए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर। बुरी खबर? मैं तो अच्छी खबर के लिए आया था, अपने ट्रांसफर के सिलसिले में। सरदार रशीद ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। असेंबली की कमेटी दरिया रेक के पुल के बारे में तहकीकात करेगी कि उसमें क्या क्या घपले हुए। Sit down, Khalid. Thank you, sir. Khalid, I have seen your file. Do you know the charges? Sir, the whole case was cooked up. But how it's possible? The real problem is कि ऑडिट ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दी है, तुमने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक रिकॉर्ड तैयार नहीं किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लैक ऑफ इंटरेस्ट शो किया। सर, मैंने तमाम रिकॉर्ड रखा था, बाकायदा एमडी बनवाई थी सर। आप जानते हैं सरदार रशीद मुझसे खुश नहीं थे सर, बल्कि मेरा अपना डिपार्टमेंट वो भी खुश नहीं थे। वो लोग, उनका खाना पीना बंद हो गया था सर। अब महकमा जिसकी जिम्मेदारी पुल बनाना था सर, वो भी इस मौके की तलाश में था कि किसी तरह रिकॉर्ड, खास तौर से कैश बुक और एमडी गायब कर दी जाए। चुनांचे उन्होंने ऐसे ही किया। बट हाउ टू बेनिफिट सरदार रशीद? सरदार रशीद चाहेगा कि मैं खुद उसके पास जाऊं और उससे दरखास्त करूं कि वो मेरी इंक्वायरी खत्म कराए, और सारी उम्र मैं उसका एहसानमंद हूं। नो 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 नो, दिस इज नो एक्सक्यूज। और फिर मातहत अमला जो है वो कैसे रिकॉर्ड गायब करा सकता है? मैं उसे मेंटेन करना उनकी भी जिम्मेदारी है। सर, मेरे पास अभी कोई जरिया नहीं कि मैं साबित कर सकूं कि कैश बुक और एमडी मौजूद थी। बहरहाल तुम इंक्वायरी के वक्त गवाह बुला लेना, बल्कि जिन्होंने एमडी बनाई है उन्हें बतौर गवाह तलब कर लेना। सर, मेरी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। आप यकीन कीजिए, मैंने 1 पैसा अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। सर, पुल तामीर हो चुका है, लोग गवाही देंगे कि यह पुल मेरे दौर में तामीर हुआ, मेरे महकमे ने तामीर कराया सर, और 50% कम कास्ट पर तामीर हुआ है। सॉरी खालिद, नाउ इट्स टू लेट। प्रोविंशियल पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इंक्वायरी के। देखो, अगर ये किसी एक वजीर या वजीर आला का मामला होता ना तो मैं बात कर लेता, लेकिन कमेटी के मामले में इंक्वायरी के बाद ही कोई फैसला हो सकेगा। ओके? आइए। Oh, nice music. Beautiful. That one is, oh yeah. कुछ आवाजों के साए. Yeah, that is your favorite sound. Yeah, it was true. But Khalid, you look so depressed. What happened with you? क्या उदास क्यों इतना नजर आ रहा है? प्रोफेसर, मैं तुम्हारे मुल्क से जा रहा हूं। You mean, are you going back to Pakistan? Oh, that's good, that's good.
But Khaled, I'll miss you. मुझे देश निकाला मिल गया। हुकूमत बरतानिया ने मुझे मजीद क़याम देने से इनकार कर दिया। उनका ख्याल है कि मैं इकोनॉमिक रिफ्यूजी हूं। Khaled, you know what happened? British economy के अंदर ना इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो थर्ड वर्ल्ड के लोगों को वेलकम कर सके। नहीं, आई डोंट ये बात नहीं है। हाँ, ये मसला सिर्फ हुकूमत बरतानिया का नहीं है। बैठे, तशरीफ रखें। थैंक यू Khaled, थैंक यू। पूरे यूरोप का है ये मसला, पूरे शिमाली अमेरिका का है। भाई आप लोग कब तक लोगों को तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ आने से रोकते रहेंगे? Khaled, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, इन तमाम कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को इकोनॉमिक सोशल रिक्वायरमेंट्स को भी तो रेगुलेट करना है। तुम लोग ये कब तक करोगे प्रोफेसर, कब तक? दुनिया की 3/4 आबादी ऐसी है जहां भूख और नंग है, जुल्म और अफलास है। ये सब तुम्हारे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से। तुम्हें पता है इन ममालिक में अरबों सांस लेने वाले इंसान रहते हैं, अरबों। अगर वहां भूख और नंग कायम रही तो लोग सियाह बादलों की तरह तुम्हारे खित्ते की तरफ रुख करेंगे। और ये कोई 100-200 तो है, 1000-10,000 भी नहीं। ये अरबों लोग हैं। और इन अरबों लोगों ने जलती मोमबत्तियां उठाकर भी चलना शुरू कर दिया तो उसकी हरारत हर शय भस्म कर देगी। ये तुम्हारी सारी इन्वायरमेंट है ना, ये तबाह हो जाएगी जिसका तुम हर वक्त शोर करते रहते हो। तुम अपने इस बदतरीन हालात में भी इस कलेक्टिव प्रॉब्लम्स को ले आए हो, क्यों? मैं प्रोफेसर ऐसा नहीं, मैं बस अपनी जाती दुखों को छेड़ रहा हूं, इजहार कर रहा हूं, पुरानी राग को उलट पुलट रहा हूं। वो तुम नाजिम को जानते हो? Oh, yes. You told me before that he was your colleague, Nazim. हाँ, वो अब भी अपने मुल्क जाने के लिए तैयार है। उसका ख्याल है कि हुकूमत बदलेगी तो नई हुकूमत उसे बुला लेगी, हालांकि उसका जुर्म साबित हो चुका है। और मैं सच्चाई का कैदी रहा प्रोफेसर, सच्चाई का कैदी। Khaled, I've never seen you before like that. I mean, तुम इतना उदास पहले कभी नहीं था। अरे साइदा, तुमने अभी से जाने की तैयारी शुरू कर दी? अभी तो जाने में 7 दिन बाकी हैं। खैर चलो, तो बात नहीं। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन सा सामान लेकर जाना है, क्योंकि कुछ चीजों को बेचकर जाना होगा। साइदा, मैं सोच रहा हूं जाने से पहले तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग कर लो। ये आपको हमारी फिक्र कब से हो गई? और जाना कहाँ है ये क्या पता? तुम्हारा ख्याल नहीं होगा तो और किसका होगा? हमने तो हमेशा सिर्फ अपनी बेगम का ही ख्याल रखा। हकीकतों का सामना करें। मैंने मम्मी से फोन पे बात कर ली है, हम पाकिस्तान जा रहे। वो टिकट भिजवा देंगी, बच्चे भी मेरे साथ जा रहे। क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? ऐसा ही समझ लीजिए। क्यों? मैंने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया साजदा? हमेशा ख्याल रखा है तुम्हारा। क्या ख्याल रखा है? क्या ख्याल रखा है आपने? आपके बैच के लोग छुट्टियों में यूरोप जाते हैं सैर करने के लिए, और आपसे इतना नहीं हो सकता था
कि गर्मियों की छुट्टियों में हमें पहाड़ों पर ले जाते। मैं भाई की शादी में कोई बड़ा तोहफा नहीं दे सकी, अपने दिल के अरमान नहीं निकाल सकी। मेरी बहन की शादी में आप शरीक नहीं हुए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। मेरे बच्चे छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते रहे। क्या दिया है आपने, क्या दिया है खालिद? आज हम बेदर और बेवतन हैं, मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं। क्या कर सकता हूं साजदा, तकदीर से तो नहीं लड़ सकता, जो मेरे जीन में है वो तो नहीं बदल सकता। आप क्यों इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं खालिद? क्यों अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखते? क्यों अपने असूलों के साथ चिमटे हुए हैं आप? अपने बीवी बच्चों तक का ख्याल क्यों नहीं ख्याल है बीवी बच्चों का? बच्चों का ख्याल ना होता तो यहां क्यों आता साजदा? इसलिए तो मैं आया हूं यहाँ कि जो मेरी बदनामी की खबरें ना अखबारात में छपेंगी, बच्चों को उनका पता न चले। आपको ख्याल नहीं है, इसीलिए मैं वापस जा रही हूं। बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनका बाप कोई मुजरिम नहीं है। कब तक वो हकीकतों से भागते रहेंगे? कब तक? तुम क्या समझती हो मैं अपने वतन जाना नहीं चाहता? जब यहां दरख्तों पर पत्ते लहराते हैं तो मुझे अपने वतन की हवा याद आती है। मेरे कान उन आवाजों, उन गानों के लिए तरसते हैं जो सड़क पे जाते हुए मुझे सुनाई देते थे। यहाँ की तो रंग भी मुख्तलिफ है साजदा, पर तुम मेरे कर्ब को समझो तो सही, जानो तो सही। तुमने सच कहा, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं, सेल्फ सेंटर्ड। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं समंदर के उस किनारे पहुंच चुका हूं। जहां देखता हूं तो सामने भी समंदर है, पीछे मुड़कर देखता हूं तो लंबा सफर। हाय पापा, हाय मामा, साजिद नहीं आया? और ये क्यों जा रहे हैं आप लोग? कहाँ की तैयारी मामा? अपने पापा से पूछो। हाँ बेटा, हम जा रहे हैं। वहां जहां हमारी मिट्टी है, जहां हमारा साहिल है,